Now, angle inscribed in a semicircle is a right angle. Means angle ABC, we have to prove that its measurement is of 90 degree. So we have been given to us in a circle with a center M. Angle ABC is inscribed in the arc, this arc ABC only, and arc ABC and arc AXC are semicircle. Means ABC arc is semicircle. The measurement of semicircle is 180 degree, as well as AXC is also semicircle, means half circle. Half of the circle measurement is 180 degree only. We have to prove that angle ABC, this angle is equal to 90 degree. So proof, angle ABC, measurement of this angle is equal to what? Measurement of angle ABC is half of measure of arc AXC, करेक्ट? आधा रहेगा AXC का हाफ होएगा. रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. सो मेजर आर्क AXC का वैल्यू है हमारे पास 180 डिग्री. क्यों? मेजर ऑफ सेमी सर्कल सर्कुलर आर्क इज 180 डिग्री. हाफ ऑफ द सर्कल का मेजरमेंट आता है 180 डिग्री. तो 180 डिग्री का आधा कितना हो गया? 90 डिग्री. सो मेजर एंगल ABC is half of 180 is equal to 90 degree. So this is how we have proved like angle ABC is equal to 90 degree. Now we will see to next theorem. So we are going to start with the theorem of cyclic quadrilateral. What it states: opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Means if you see the diagram properly, ABCD is my cyclic quadrilateral it is, and angle D plus angle B is equal to 180 degree, that I want to prove, as well as angle A plus angle C is equal to 180 degree, that I want to prove it here. Given to us quadrilateral ABCD is a cyclic, means it is there in a circle, ABCD quadrilateral. So proof, arc ABC, if you look at the diagram, this is the diagram. ABC arc is intercepted by inscribed angle, which it is angle ADC. ADC angle, and arc ABC, it is been intercepted by angle D. So angle ADC means this angle is equal to half of measure arc ABC, correct? As well as angle, we can say ABC. Now down angle ABC angle is an inscribed angle, correct? It is intercepted. It intercepts which arc? It intercepts the arc ADC. इसका मतलब क्या हो जाता है? ये एंगल ABC है और ये जो उसका इंटरसेप्ट है, कहां पे इंटरसेप्ट करते हैं एंगल ABC? इट इंटरसेप्ट आर्क ADC, करेक्ट? So angle ABC is equal to what? Half of measure arc ADC. So written here, angle ABC is equal to half of measure arc ADC. ऊपर वाले को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते हैं, सेकेंड वाले को दिस एंगल ABC is equal to half measure arc ADC को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पकड़ते हैं. Then we will add one equation and two equation. So angle ADC plus angle ABC is equal to half of measure arc ABC plus half of measure arc ADC. Adding equation 1 and 2. अब यहाँ पे दोनों साइड पे हाफ ऑफ कॉमन है, तो हाफ को हम लोग ने बाहर निकाला, तो क्या बन गया? हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क ADC आ गया, यानी मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क ADC. तो इट मेक्स अ बिग सर्कल.
So what is the measurement of circle? 360. So we can write it down is equal to half into 360. Half of 360 is 180 degree. So we got the measurement of angle D plus angle B is equal to 180 degree. Correct? So similarly, we can prove that angle A plus angle C is also 180 degree. So very easy theorem it is. Just you have to see it 2 to 3 times, then you will be coming to know very easily. Now let's see to the next theorem. Now, corollary of cyclic quadrilateral, given to us that ABCD is a cyclic quadrilateral. From the diagram you can see it. An angle BCE is the exterior angle of quadrilateral ABCD. यानी एंगल BC क्या है? बाहर वाला एंगल है ये क्वाड्रिलेटरल के लिए, ABCD के लिए. Prove what you have to prove. Angle BCE is congruent to angle BAD. That you have to prove it here. Means BCE angle congruent to angle BAD हम लोग को prove करने का. So what we know? We know that angle BCE plus BCD is 180 degree. Reason will be angles in a linear pair. ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पकड़े. दूसरा एंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये. इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स में एंगल A प्लस एंगल C मिला के कितना हो जाता है वो 180 डिग्री. सो कैन राइट इट डाउन. एंगल BAD प्लस एंगल BCD यानी BCD ये दोनों मिला के हो गए 180 डिग्री. रीजन opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary. This will be my equation number 2. So from equation 1 and equation 2 what are we getting? Right hand side दोनों का 180 डिग्री है. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे को इक्वल है. So return your angle BCE plus angle BCD is equal to angle BAD plus angle BCD. Reason from 1 and 2. एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल टू का राइट हैंड साइड में दोनों कट हो जाएगा. सो व्हाट इज रिमेनिंग? एंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD. सो दिस इज हाउ वी वांट टू प्रूव इट हियर. वी हैव प्रूव्ड इट हियर. वी कैन टेक गिव द नंबर्स आल्सो हियर. फॉर एग्जांपल अगर BC का वैल्यू 70 डिग्री है तो लीनियर पेयर पे ये दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाता है? 180 डिग्री. सो 180 में से 70 निकाल दो तो कितना बच गया? 110 डिग्री हो गया. करेक्ट? दिस विल बी 110 डिग्री. अगेन ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. उसका प्रॉपर्टीज क्या है? ऑपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री. सो A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. So 180 डिग्री में से वापस 110 निकाल दो. We are getting here as 70 degree. Correct? So now you can see angle BAD which is 70 degree is equal to angle BCE which is 70 degree. So this is how we have proved. Now we will see to next theorem. Now the theorem states that 2 points on a given line subtend equal angles at 2 distance points which lie on the same side of the line. इसका मतलब लाइन है हमारे पास AD, दो एंगल दिया हुआ है. एंगल ABD, सेकेंड एंगल इज एंगल ACD. बोथ द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर and they are subtended by one single line, it is AD, which lie on the same side of the line. Then the 4 points are concyclic, means A, point B, point C, point D. These are concyclic, means it becomes a cyclic quadrilateral. That we have to prove it. Now given to us
पॉइंट बी एंड पॉइंट सी लाइज ऑन द सेम साइड। देखो पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, कहां पे लाई होता है? लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन एडी। एडी का सेम साइड पे ये दोनों पॉइंट लाई होता है। एंगल एबीडी, एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीडी। इट इज गिवन टू अस लाइक दिस वे। If you see the upper diagram also, angle ABD is congruent to angle ACD. Means both the angles are congruent to each other. What we have to prove? That point ABCD are concyclic. Means quadrilateral ABCD क्या है? It is a cyclic quadrilateral. ये हम लोगों को prove करना है। Now let us assume, हम लोग assume करते हैं कि जो सर्कल है ना, सर्कल कहाँ पे पास होता है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी के थ्रू ये सर्कल पास हो जाता है, लेकिन पॉइंट सी के थ्रू ये सर्कल पास नहीं होता है, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे। सो लेट अस एज्यूम दैट द सर्कल पासेस टू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नेमली ए बी डी, ए बी डी। ये तीनों पॉइंट से सर्कल पास होता है एंड डज नॉट पासेस थ्रू द पॉइंट सी। सी के थ्रू ये सर्कल पास नहीं होता है, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे। सपोज द सर्कल इंटरसेक्ट एसी एट पॉइंट ई। ऐसा हम लोग सपोज करते हैं कि सर्कल सी के जगह पे टच होने से पहले ई को टच करते हैं, नहीं तो एफ को टच करते हैं सर्कल। विल एज्यूम इट लाइक दिस वे एज शोन एज इन द फिगर। सो दीज आर माय डॉटेड लाइंस, point ED, sorry, line ED and line FD. I made a dotted line, so this becomes my construction here. Join DE, join DF, and join AF also. DE we are joined, DF also we are joined by the dotted line, and AF C तक था हमारा लाइन, तो C से भी और आगे तक हम लोग लाइन खींचे F तक, बाद में हम लोग ने FD ज्वाइन किए। Then angle ABD is congruent to angle ACD. That is be given to us. See, ABD is congruent to angle ACD in cyclic quadrilateral. ABD यानी हम लोग का ये एंगल हो गया ABD, किसको congruent है? एंगल ACD को congruent है। That is given to us. Correct? So we write here given, मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे दो केस पकड़ेंगे। केस 1 ऐसा रहेगा कि सर्कल ई के थ्रू गुजरता है, केस 2 ऐसा रहेगा कि सर्कल एफ के थ्रू गुजरता है। नाउ केस 1, द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ई। सर्कल कहाँ पे पास होता है? थ्रू द पॉइंट ई के थ्रू पास हो जाता है, यानी ए बी डी के थ्रू सर्कल तो पास होता ही होता है। हम लोगों ने केस 1 में लिए कि ई के थ्रू भी सर्कल पास होता है करके। सो वी नो दैट angle ABD is congruent to angle AED. ABD is congruent to angle AED मीन्स हमारा ये एंगल हो गया। करेक्ट? क्यों? क्योंकि दोनों का आर्क सेम है, AD आर्क है। एंगल ABD का आर्क है AD एंड एंगल AED का इंटरसेप्टेड आर्क इज नॉट AD ओनली। करेक्ट? So angle inscribed in the same arc. AD is a common arc for both the angles, for the angle B as well as for the angle E here. So what we know from 1 that ABD is congruent to ACD. ABD किसको इक्वल है? ACD एंगल को इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल AED भी एंगल ACD को इक्वल है। करेक्ट? So angle AED is congruent to angle ACD from 1. What the concept clear here? So I will give you the example of degree also. For example, हम लोग के डायग्राम में एंगल ABC का वैल्यू लेते 30 डिग्री, तो एंगल ACD का भी वैल्यू कितना रहेगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, गिवन टू अस एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD करके, तो हम लोग ने पकड़ा 30 डिग्री। बाद में क्या देखा हम लोग ने? एंगल AED एंड एंगल ACD दोनों का इंस्क्राइब्ड आर्क सेम है, AD है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल AED।
angle ABD is congruent to angle AED. So this one will be also by 30 degree. So we can say that angle AED is congruent to angle ACD. Both measurement is of 30 degree only. So from one we have taken here. लेकिन अगर हम लोग ट्राइंगल देखेंगे CED, अगर आप लोग ट्राइंगल देखो CED, अगर हम लोग ट्राइंगल पकड़ते हैं CED, दिस ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल, तो CED ट्राइंगल का बाहर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल DEA, ये बाहर का एंगल है, ये तो वी कैन टेक इट एज AED, बाहर का एंगल है। सो बाय रिमोट इंटीरियर एंगल, बाहर का एंगल हमेशा क्या हो जाता है, उसका मेजरमेंट कितना रहता है? इट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स C प्लस D। कभी भी ये दोनों एंगल इक्वल होएगा ही नहीं। सो वी कैन से दैट एंगल AED इज नॉट इक्वल टू एंगल ACD। AED और ACD भी दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं। सिमिलरली केस 2 में क्या हो जाएगा? हम लोग ने क्या लिया थे केस 2 में कि जो सर्कल है F के थ्रू पास हो जाता है। अगर वो F के थ्रू पास हो जाता है, सो अगेन विल बी डूइंग द सेम थिंग। एंगल ABD किसको इक्वल रहेगा? एंगल AFD को इक्वल रहेगा। इसका मतलब अगर एंगल ABD का मेजरमेंट है 30 डिग्री, तो AFD का भी मेजरमेंट होएगा 30 डिग्री। एज वेल एज व्हाट इज बी गिवन टू अस, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। ABD और ACD दोनों सेम है। इसका मतलब ACD और AFD ये भी दोनों सेम हो गया, करेक्ट है। यानी C एंगल और F एंगल का मेजरमेंट भी 30 डिग्री है। अगर हम लोग ये ट्रायंगल देखते हैं, BCF ट्रायंगल देखते हैं, तो BCF ट्रायंगल के लिए, DCF ट्रायंगल के लिए DCA बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, एंड एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है? रिमोट इंटीरियर एंगल, दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल को प्लस करेगा तो उसका वैल्यू एक्सटीरियर एंगल रहता है, करेक्ट। बट दैट इज व्हाई एंगल 30 इज नॉट इक्वल टू एंगल 30 वी कैन से, और एंगल C इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। सो आवर assumption इज रॉन्ग। We'll just see how it works in case 2 now. Now we have taken case 2. In case 2, we have taken like this way. The circle is passing through the point F now. If the circle is passing through the point F, what will happen? We know that angle ABD, this angle ABD 30 degree is congruent to angle AFD. Why? Because both the angles, angle B and angle F, are inscribed with the same arc AD. If you see ABD का arc है, इसका arc है AD. In the same manner, AFD का भी inscribed arc क्या है? AD it is. So angle inscribed in the same arc it is. This will be a reason. So from 1 में क्या था हमारा? Angle ABD congruent to angle ACD था. एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD। इसका मतलब एंगल ACD भी किसको इक्वल होएगा? एंगल AFD को इक्वल होएगा फ्रॉम 1। नाउ वी नो दैट इफ वी सी द ट्रायंगल CFD, अगर हम लोग बाहर का ट्रायंगल देखते हैं, CFD ट्रायंगल देखते हैं हम लोग, तो CFD ट्रायंगल के लिए हमारे पास ACD एंगल क्या होगा? ये एंगल बाहर का एंगल हो गया ये ट्रायंगल के लिए, करेक्ट। फॉर ट्रायंगल CFD के लिए हमारा एंगल ACD क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। सो माय एक्सटीरियर एंगल ACD इज नॉट इक्वल टू एंगल AFD। AFD ये एंगल और ये एंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट होएगा ही नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल के लिए एंगल ACD बाहर का एंगल है इसके लिए। सो आवर assumption इज रॉन्ग। Therefore, point C, point E, and F are the same point. यानी वो सभी एक ही पॉइंट है। Therefore, point A, B and C are concyclic, or you can say quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. So, ये थ्योरम में आप लोगों को दो केस आ गया, केस 1 और केस 2 करके। जैसे कि हम लोग ने लिया ABD
आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और हम लोगों ने क्या पकड़ा था कि सर्कल पास होते हैं ई पॉइंट के थ्रू केस 1 में। केस 2 में हम लोग ने देखा था कि पास होता है एफ के थ्रू, एंड वी गॉट दैट व्हाटएवर assumption you have taken it is a wrong because एक्सटीरियर एंगल बाय रिमोट इंटीरियर एंगल टेस्ट कि बाहर वाला एंगल कभी भी अंदर वाला कोई भी रिमोट इंटीरियर एंगल से कभी भी कॉन्ग्रुएंट कभी होएगा ही नहीं, क्योंकि रिमोट इंटीरियर एंगल दो एंगल को प्लस करता है, तो फिर इट बिकम्स माय एक्सटीरियर एंगल। इट इज लाइक दिस वे। सो यू हैव टू गो प्रैक्टिस इन दिस थ्योरम 4-5 times you have to do on your own, then you come to know how it works. Now we will see to the practice set.